میں جناب حضرت مولانا صدام ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اور انہیں 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور اپنی قیمتی باتوں سے وہ ہم سامعین کو نوازے. حضرت مولانا صدام ندوی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Me praise be to Allah, the creator of the world. Peace and blessing upon his prophet, the head of all messengers, the head of all prophethood, the seal of all prophet. Allah bless him and give him peace, and upon his family and upon his companions. Allah Jalla Jalaluhu called mercy for all universes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you, but O Prophet, mercy for all worlds. And Allah Tabaraka wa Ta'ala says another place, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. We did not send you, O Prophet, we did not send you, but to entire mankind, as a bearer of good news and as a warner, but many people don't know about you. حضرات گرامی، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. حضرات گرامی، میرے تقریر کا عنوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت. میری کیا بساط کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس اہم موضوع پر لطف کشائی کر سکوں، لیکن یہ آپ حضرات کی کرم نوازی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ گولڈن چانس دیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. میں سب سے پہلے حضور کے ابتدائی دور سے آخر دور کا میں سفر کراتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق اس دنیا میں 22 سپٹمبر 571 عیسوی مطابق 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن اس دنیا میں تشریف لائے. اب آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 ماہ قبل آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ یتیم پیدا ہوئے. بی بی آمنہ آپ کی تربیت کی، دائی حلیمہ آپ کو دودھ پلایا. جب آپ 6 سال کے ہوتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے. جب آپ 12 سال کے ہوتے ہیں تو شام کا پہلا تجارتی سفر کرتا ہے. جب آپ 25 سال کے ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ سے نکاح فرماتے ہیں. جب آپ 30 سال کے ہوتے ہیں تو قریش کی طرف سے آپ کو صادق و امین کا خطاب ملتا ہے. جب آپ 37 سال کا ہوتے ہیں تو غار حرا میں خدا کا دھیان جما کر اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں. جب 40 سال کا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے اور نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے اور غلام میں حضرت زید ہے اور حضرت علی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرتے ہیں. جب آپ 43 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو 80 سے 40 مرد اور عورتیں اسلام قبول کرتے ہیں. جب آپ 50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں اور حضرت عائشہ سے نکاح فرماتے ہیں اور اسی سال معراج کا عظیم واقعہ پیش آتا ہے.
जब आप 54 साल के होते हैं तो मदीना की तरफ हिजरत फरमाते हैं। जब आप 55 साल के होते हैं तो जंग वहद का वाकया पेश आता है। जब आप 58 साल के होते हैं तो ग़ज़वा खंदक का वाकया पेश आता है। जब आप 60 साल के होते हैं तो फतेह खैबर का वाकया पेश आता है। जब आप 61 साल के होते हैं तो फतेह मक्का का वाकया पेश आता है। जब 62 साल के होते हैं तो ग़ज़वा तबूक का वाकया पेश आता है। जब 63 साल के होते हैं तो खुतबा हज्जतुल वदा देते हैं और आखिरी हज फरमाते हैं और इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। मैं आपकी सीरत और किरदार का अगर मुताला कराऊं, आपको स्टडी कराऊं, तो आप इंसानों में सबसे अफजल पाएंगे। आप उनको इंसानों में सबसे अफजल पाएंगे, चाहे वो हया के एतबार से हो, चाहे वो इखलाक के एतबार से हो, चाहे वो किरदार के एतबार से हो, चाहे वो कैरेक्टर के एतबार से हो। हर कैरेक्टर से, हर एतबार से आपको सबसे आला पाएंगे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान शाहिद है, कुरान गवाही दे रहा है और कुरान कह रहा है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि मैंने आपके लिए एक आइडियल भेजा, एक काइंडनेस पर्सन भेजा, एक हादी भेजा। ये आपके लिए एक नमूना है, एक आपके लिए गाइडर है। कुरान अगली जगह कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से एक ऐसे पैगंबर को, एक ऐसे मैसेंजर को, एक ऐसे प्रोफेट को, एक ऐसे हादी को, एक ऐसे मुर्शिद को भेजा जो अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाते हैं, उनकी तज़किया करते रहते हैं और उनको किताब हिकमत की तालीम देते हैं। जबकि ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। मैं अपने नबी के बारे में बताना चलता हूं कि अरे मेरे नबी वो नबी है जो सबसे आला, सबसे अफजल है, क्योंकि वो जो किताब लेकर आए वो तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है। जो दीन लेकर आए वो दीन तमाम अदियान में अफजल है। जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों में अफजल है। आपके सहाबा तमाम अंबिया के सहाबा और हवारीन में अफजल है। आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है। आपका कानून कानून इलाही है, आपका कलाम कलाम इलाही है। अरे ये वो नबी है, ये वो नबी है जो सबसे आला, सबसे वाला, सबसे बरतर, सबसे अफजल है। हसीनों में सबसे अहसन, जमीलों में सबसे जमीलों में सबसे अजमल, फाजिलों में सबसे अफजल, कामिलों में सबसे अकमल। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खिदमत में एक शख्स आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बच्ची को, एक मासूम बच्ची को, एक छोटी बच्ची को कुएं पर ले गया। जब मैं कुएं पर ले जा रहा था अपनी बच्ची को, तो बच्ची बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। मैं उस बच्ची को कुएं पर ले गया, कुएं से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। जब वो बच्ची गिर रही थी कुएं में, हसरत भरी निगाहों से देख रही थी और कह रही थी कि ए अब्बा, मैंने कौन से जुल्म किया है, ए अब्बा मैंने कौन सी गलती की है, मेरी कौन सी गलती है कि आप इस जुल्म की बिना पर, आप इस गलती की बिना पर आप मुझे कुएं में धक्का दे रहे। ये सुनना था कि अल्लाह के रसूल के आंख में आंसू आ गए। ये अरब वाले थे, ये अरब वाले थे कि किरदार और अखलाक के एतबार से सबसे गिरे हुए थे। जब आगोश रहमत में आते हैं, रहमत हबीब में आते हैं, तो दुनिया का सबसे अफजल तरीन इंसान बन जाता है। इस तरह के सैकड़ों वाकयात है। आपको बताऊं कि हुजूर जब उंगली उठाते हैं ना, चांद के जो टुकड़े हो जाते हैं, जख्मजार से लबरेज है, आप अपना लुहा पे देहन लगाते हैं तो जहर दूर हो जाता है। पहाड़ हिल रहा है, आप पहाड़ को ये करके खामोश, ये करके रोकते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। इतना कहना है कि पहाड़ का हिलना बंद हो जाता है। दुश्मन इस्लाम अबू जहल, उसको खंदक से हुजूर निकालते हैं और उनके जख्मों पर अपना हाथ फेर देते हैं और उनका जख्म दूर हो जाता है। ताइफ के सफर का आपको मालूम होगा कि ताइफ के सफर में हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने हुजूर से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी हालत में हुई है? हुजूर ने फरमाया, हमको जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ ताइफ के सफर में हुई। आपको मैं बताऊं ताइफ के बारे में कि जब अल्लाह के रसूल दीन की दावत लेने के लिए ताइफ में जाते हैं
तो ताइफ के सरपसंद अल्लाह के रसूल के पीछे पड़ जाते हैं और पत्थर चला करके मारते हैं। पत्थर मार मार के हुजूर के जिस्म अतर को लहू लुहान कर देते हैं और खून का आलम यह होता है कि आपके पिंडली से जाकर के, आपके नालेन मुबारक के, आपके जूते में जाकर के लग जाते हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल के सामने पहाड़ के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के हबीब, अगर आपका इशारा हो जाए, अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं इन जालिमों को, मैं इनको दोनों पहाड़ों के दरमियान में नेस्तो नाबूद कर दूं। लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी अरबी पर, कुर्बान जाइए उस महसनी इंसानियत पर जिन्होंने बद्दुआ तक नहीं दी बल्कि दुआओं से नवाजा। जब हुजूर जाते हैं, ताइफ का सफर करते हैं, जब ये मामला होता है कि खून से लहू लुहान हो जाते हैं, तो उनके गुलाम हजरत यजद अपने कंधे पर उठा करके हुजूर को ले भागते हैं। वहां से भागते हैं, ये सरपसंद आपके पीछे लगे हुए हैं, वो भागते हैं जा करके एक काफिर के बाग में घुस जाते हैं। कोई रास्ता नहीं मिलता है, एक काफिर के बाग में घुस जाते हैं जिनका नाम उतबा बिन रबिया है। ये वो शख्स है जिनके लड़के जंग ओहद में, जो काफिरों की तरफ से जंग ओहद में उसका झंडा लेकर खड़ा था और मुसलमानों के मुखालिफ था। लेकिन ऐसे शख्स के बागात में जाते हैं, ऐसे शख्स के बाग में जाते हैं कि वो दुश्मन इस्लाम है, लेकिन कोई चारा नहीं, वहां घुस जाते हैं। जब वो देखता है तो उसको रहम आ जाता है, दुश्मन इस्लाम को रहम आता है और तश्तरी में अंगूर सजा करके अपने गुलाम को कहते हैं अद्दास, उसके गुलाम का नाम अद्दास, ए अद्दास तू उसे ले जा करके दे दे, तू उसे ले जा करके दे दे और मेरी रिश्तेदारी का उसे कसम देना कि इसे आप वापस मत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नोश फरमाते हैं, क्योंकि अगर चाहते तो पूरी दुनिया, उस वक्त पूरे कुफ्फार हुजूर को मिटाने के चक्कर में थे, अगर चाहते तो उतबा बिन रबिया वही हुजूर का काम तमाम कर देते, लेकिन उन्होंने काम तमाम नहीं किया बल्कि उनके दिल पर रहम आ गया। मैं बताता हूं आपको कि उनके दिल पर रहम आ गया कि आज हम उनकी उम्मत है, हमारे ऊपर हम नहीं करते हैं, हम हुजूर के बारे में नहीं सोचते हैं, हम तो शराबखोरी में मस्त है, हम तो जुआखोरी में मस्त है, हम तो ज़िनाकारी में मस्त है, हमें क्या, हमें नबी क्या सब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कि हमने क्या बना लिया उस जुमले को मालूम है? हमने उस जुमले को बना लिया कुर्रतु ऐनी फिल खमर, कि हमने शराब, हमारी आंखों की ठंडक वो शराब में है, हमारी आंखों की ठंडक शराब में है, हमारी आंखों की ठंडक जुए में है। ए मेरे भाई, ए राजपुर के मुसलमानों, मैं आपको कहता हूं, आपको बताता हूं हुजूर के बारे में, सिर्फ 1 मिनट लेता हूं और अपनी जगह लेता हूं कि मैं मुसलमानों, ए राजपुर के मुसलमानों, मैं आपको बाखबर कराना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के बारे में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जमीलों में सबसे अजमल है, क्योंकि हुजूर जब मुस्कुराते हैं तो सितारे चहकने लगते हैं, आप जब बोले तो अनादिल चहकने लगते हैं, कुरान उनकी लिबास की अदाएं बन जाते हैं और कहते हैं, जब चादर ओढ़ के निकलते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, जब कंबल ओढ़ के निकलते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। हुजूर जब मुस्कुराए तो जन्नत बहकने लगे, हुजूर जब गुस्सा हो जाए तो जन्नत उबलने लगे, आप जो उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आपका कदम उठ जाए तो अर्श मौला पर पहुंच जाए, और जब आप जबान खोल देना वही के अंबार लग जाए। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।